Hello guys and welcome to the YouTube channel of Wings A Kudan. So let's make it together. Hello guys, I am Urfan. My actual name is Omar Urfan and I am an KPS officer, 49th rank with my option as Political Science and International Relations. And in addition to that, I have done my Masters, MPhil and PhD in International Relations, Masters in Political Science. And I would like to share with you people that I have better experience in political science because I have my NET, National Eligibility Test set, and even JRF in political science. And now I am SRF as well, Senior Research Fellow in International Relations and Political Science. So today I found this platform, Wings का ये platform, to interact with you people and provide you some insights with respect to the preparation of political science and international relations. And in addition to that, कुछ चीजें हैं जैसे GS third, essay, and this polity portion. So I am just trying to make it comprehensive. This preparation, political science preparation, should somehow help you in general studies as well, and ethics and essay paper also. So I think this is the right time to start. So I have got one piece of paper with me. First of all, I would like to discuss with you syllabus of political science. Okay. Yeah, if you look into PSIR as a subject, in PSIR we have 500 marks. This 500 marks we have paper 1 plus paper 2. So that means in paper 1 we have 250 marks, in paper 2 we have 250 marks. Now in paper 1 we need to decipher this whole syllabus कि कौन सी चीजें हैं इसमें. Political science में I will give this broad idea. In paper 1 we have political theory and thought. We have IPS, Indian political system, and Indian nationalism. So this portion constitutes 250 marks. Now this is paper 1. Then we have paper 2, P2. In paper 2, we have comparative politics and international relations, part A of paper 2, and in part B, we have India and the world. So, paper 2 we have comparative politics and international relations. In paper 2 we have India and the world. In India and the world we have foreign policy in particular, and we have India and the international organizations also. So here what I wanted to tell you people is that कि political science की वजह से हमें 500 marks ही नहीं है इसमें. We have nearly 1000 marks with the help of political science. In this, if we prepare this optional thoroughly, बहुत अच्छी तरह पढ़ाई करेंगे, smartly पढ़ेंगे, we have nearly 1000 marks. I will tell you how that is possible. See, you have GS1, that is essay of 250 marks. Then you have GS2, which includes history, heritage, and other parts. Then we have GS3. GS3 में there is governance, social justice, international relations. GS3 पूरा के पूरा है political science वाला. That means 250 marks. If you prepare political science thoroughly, this 250 marks इसी में से आएगा. That means अपना 500 marks और GS3 के 250 marks. कितना हुआ? 750 marks.
देन वी हैव एसए 250 मार्क्स। अभी तक अगर आप देख लेंगे एसए जो भी अभी तक आए हैं यूपीएससी ने जो पूछे हैं, all there is at least one of the essays which has political backing or which is very much directly or indirectly linked to the political science optional. If you have thoroughly read political theory, political thought, Indian government and politics, and prepared current affairs also, so then you will be able to write one of the brilliant essays of GS1. So that means essay paper GS3 and political science 500 marks, it means 1000 marks. अब आप बोलेंगे 1000 मार्क्स तो ऐसे में 1000 है नहीं, लेट इट बी 150. बट इन एथिक्स एंड इंटीग्रिटी ऑल्सो, इफ यू लुक इनटू द पेपर्स ऑफ एथिक्स एंड इंटीग्रिटी, जो पेपर 4 है जीएस का, उसमें भी इफ दे आस्क 10 क्वेश्चंस और 20 क्वेश्चंस, 4 क्वेश्चंस पॉलिटिकल साइंस के बैकग्राउंड वालों से ही पूछते हैं. और they ask some questions from jests. They ask some questions from Gandhian philosophy. They might ask some questions from Ambedkar's philosophy. So ethics पे भी impact रहता है. It means if you prepare political science thoroughly, you will be getting nearly 1200 marks का preparation. 1200 marks तैयार करना एक optional से, it is a big chunk. If you look into the marks secured by the aspirants who get through into civil services. So you got this, you have a broader overview of the subject कि क्या क्या आ सकता है. हाँ, now there are two kinds of people. Those people who have background दूसरा those who are new. I will request those people जिनका बैकग्राउंड है, जिन्होंने मास्टर्स किया है, किसी ने एमफिल कोई कर रहा है, या किसी ने अपने ग्रेजुएशन में पढ़ा है पॉलिटिकल साइंस, उनको लगता है कि भाई वी डोंट नीड एनीथिंग नाउ. हाँ, दैट इज वन ऑफ द बिगेस्ट मिस्टेक्स, दैट यू स्टॉप थिंकिंग कि अब हमें कुछ नहीं चाहिए, हमने पढ़ाई किया है इसका. बट यूपीएससी प्रिपरेशन रिक्वायर समहाउ थोड़ा सा आपको स्मार्टली एक्ट करना पड़ेगा. You need to analyze the papers, previous year's papers, कैसे पूछता है question. And those people who are new to the subject, I will request those people to please read NCERTs first. 11th, 12th. सबसे पहले 11th, 12th. 11th का 2 है. एक है पॉलिटिकल आइडियोलॉजी वाला, जिसमें जेस्ट्स का आपका मिलेगा आइडिया, सोशलिज्म क्या है, लिबरलिज्म क्या है. एंड सेकंड बुक है उसका इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क. यू विल गेट द फिलोसफिकल बैकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. लक्ष्मीकांत इज ऑल राइट. यू नीड टू रीड लक्ष्मीकांत फॉर योर प्रिलिमिनरी एंड फॉर अंडरस्टैंडिंग द बेसिक ऑर्गन्स जो हैं, बाकी चीज़ें, कुछ जजमेंट्स हैं, वो लक्ष्मीकांत से आपको आइडिया मिलेगा, हिस्टोरिकल बैकिंग का पता चलेगा. But at the same time, you need to have philosophical idea as well, since you are preparing for political science as an optional. And at the same time, I would like to recommend those people who are not having political science as optional कि वो भी 11th की दोनों किताबें पढ़े इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम वाले, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क, एंड सेकंड वन इज पॉलिटिकल आइडियोलॉजी वाला, पॉलिटिकल थियरी. Then in 12th class, you have 2 NCERT बुक्स ऑफ पॉलिटिकल साइंस, वो भी आपको पढ़नी पड़ेंगी. सबसे पहले बट मोर इम्पॉर्टेंट आई वुड लाइक टू मेंशन हियर इज दैट 11th की ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो प्लीज़ पढ़ लीजिएगा. या नाउ आई थिंक गाइज यू पीपल हैव सम आइडिया ऑफ बेसिक बुक्स क्या क्या है, बट ऑप्शनल के लिए यही काफ़ी नहीं है. यू नीड टू हैव अ थॉरो रीडिंग ऑफ ऑल द इम्पॉर्टेंट बेसिक बुक्स. वो मैं बता दूंगा कि क्या क्या पढ़ना है. NCERT तो करनी ही करनी है, NCERT को देयर इज नो अदर ऑप्शन. नाउ सोर्सेज. आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू, जितना कम बुक्स आप पढ़ेंगे रिपीटेडली उतना ज़्यादा फायदा है. एंड प्लीज डोंट रीड ऑल द बुक्स फ्रॉम कवर टू कवर, फ्रॉम A to Z. यू नीड टू रीड फ्यू टॉपिक्स. जैसे कि आप जेस्ट्स पढ़ रहे हैं, गाबा में दिया हुआ है जेस्ट्स, बट अगर आपको लग रहा है कि इन गाबा जेस्ट्स के साथ जेस्ट्स नहीं हुआ है, then you can टेक सम अदर
बुक्स, एंड्रू हैवर्ड की पढ़ सकते हैं जेस्ट्स के लिए, या कुछ और भी बुक्स हैं. सम पीपल कैन जस्ट आस्क मी ऑल्सो, बट पर्टिकुलरली कुछ पर्टिकुलर टॉपिक्स के लिए. ना कि एक बुक ले आया फिर कवर टू कवर पढ़ लिया, फिर उसमें से आपने पढ़ लिया, एक महीना लगा दिया बुक में, लेकिन वहाँ 20% भी आउटकम नहीं है उसका. यू नीड टू बी वेरी प्रोडक्टिव इन योर प्रिपरेशन. ठीक है. सो सोर्सेज जैसे पॉलिटिकल, इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम का है. इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम के लिए एक बुक है फाड़िया की. इससे आपको सी देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द क्वेश्चंस. जीएस में अगर जुडिशरी से क्वेश्चन पूछेगा और अगर पॉलिटिकल साइंस से पूछेगा, इन ऑप्शनल यू नीड टू हैव सम काइंड ऑफ एकेडमिक क्लैरिफिकेशन. एकेडमिकली लगना चाहिए कि दिस जेंटलमैन हैज रेड द टॉपिक्स थॉरोली. आपको जस्टिस का फिलोसफिकल चीजें भी पता होनी चाहिए, ना कि जुडिशरी इंडिपेंडेंट है और समथिंग एल्स. यू नीड टू हैव सम क्लैरिफिकेशन फिलोसफिकल. हमें जस्ट जब दिया है उसका बैकिंग क्या है. सो ऑप्शनल के लिए वो अंडरस्टैंडिंग उतनी होनी चाहिए. सो उसके लिए फाड़िया की बुक सिविल सर्विसेज के लिए मैं बात कर रहा हूँ, अच्छी है. ठीक है. एंड इफ यू पीपल हैव इग्नो मटीरियल, बट प्लीज डू वन थिंग फॉर इग्नो मटीरियल. डू वन थिंग, जो कंपैरेटिव पॉलिटिक्स वाला चीजें हैं वो पढ़ लो इग्नो से. बिकॉज इग्नो ने, अगर आप देखेंगे कंपैरेटिव पॉलिटिक्स की जो बुक एक आती है जौहरी की, जेसी जौहरी एक है बुक, लेकिन जौहरी ने सब कुछ नहीं दिया हुआ है या उसने बहुत चीजें दी हुई है. सो आपको जेसी जौहरी बहुत सिलेक्टिवली पढ़ना है. जैसे पॉलिटिकल कल्चर जेसी जौहरी से पढ़ना है, उधर ही हाईलाइट करना है कि मुझे ये पढ़ना है. जेसी जौहरी कवर टू कवर नहीं पढ़ना है. इट विल टेक लॉट ऑफ टाइम एंड यू पीपल वोंट बी एबल टू रिमेंबर एनीथिंग. सम टॉपिक्स उन्होंने ऐसे दिए हैं कि दैट इज नॉट वर्थ. सी आई एम नॉट, प्लीज कीप इन माइंड कि मैं राइटर के बारे में कुछ ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, बट मैं जो हमारा रिक्वायरमेंट है वो जेसी जौहरी में सब कुछ नहीं है. यू जस्ट नीड टू टेक फ्यू टॉपिक्स फ्रॉम दैट. जैसे पॉलिटिकल कल्चर है, कंपैरेटिव पॉलिटिक्स का इंट्रोडक्शन है, दैट्स इंपॉर्टेंट. देन इग्नो मटीरियल कंपैरेटिव पॉलिटिक्स के लिए बेसिक इग्नो मटीरियल मास्टर्स की एक छोटी सी बुक आती है, वो देख लेना आप, दैट इज गुड. फिर है पॉलिटिकल थॉट. पॉलिटिकल थॉट एंड थ्योरी. आई नो आपको लग रहा हो कि यहाँ से इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम से इग्नो जा रहा है. मुझे जो जो याद आ रहा है तो मैं वही शेयर कर रहा हूँ आप लोगों के साथ. विद द पैसेज ऑफ टाइम मैं आपको और भी चीज़ें बता दूंगा, एंड जो आपके क्वेश्चंस होंगे उनका मैं रेलेवेंट आंसर्स दे दूंगा. सो अभी जब पॉलिटिकल थॉट की बात चल रही है, पॉलिटिकल थॉट के लिए अगर आपको जैसे शुभ्रा रंजन के नोट्स हैं, शुभ्रा रंजन के नोट्स मैंने पढ़े हैं पॉलिटिकल थॉट की बात कर रहा हूँ. पॉलिटिकल थॉट में दोज नोट्स आर गुड, बट समहाउ यू नीड टू ऐड ऑन फ्यू थिंग्स. जैसे पॉलिटिकल साइंस में उन्होंने एरिस्टोटल पे लिखा है, प्लेटो पे लिखा है. बट नाउ व्हाट यूपीएससी और जेकेपीएससी माइट आस्क, यूपीएससी इज आस्किंग सम क्वेश्चंस ऑफ practical application. What was his idea of state and what is the present idea of state? So to compare it, you need to have an updated version of those notes. So वो जब भी आप पढ़ेंगे, kindly think about the thought. जब पॉलिटिकल थॉट आप पढ़ेंगे शुभ्रा मैम के नोट से, फिर आप एडिशन सोच लो, उसके थोड़ा सा एक स्टेप आगे चलना है हमें. ये बाउंड्री है, फिर और एक स्टेप आगे, जो क्योंकि जो एग्जामिनर होता है वो हमेशा एक स्टेप आगे का सोचता है. अगर ये बंदा पढ़ रहा है, ये ऐसा एनविजन कर पा रहा है कि व्हाट इफ दैट इज द केस, व्हाट इफ दिस इज द केस. ऑलराइट. सो पॉलिटिकल थॉट के लिए आप वो नोट्स देख लेना थोड़ा सा, प्लस जो मैंने बोला अपडेट करते रहना है हमें. देन आइडियोलॉजी. फॉर आइडियोलॉजी देयर इज ओपी गाबा, दैट्स अ गुड बुक, बट डोंट रीड इट फ्रॉम पेज टू पेज, कवर टू कवर. यू नीड टू रीड ओनली बहुत सिलेक्टिवली. दो ओपी गाबा में बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है. देन इंटरनेशनल रिलेशंस. इन इंटरनेशनल रिलेशंस there are two kinds of aspects. One is theoretical aspect. What is realism? What is liberalism? What is functionalism? वो है philosophical, theoretical part. You should have a very good understanding of that. उसके इग्नो मटेरियल से भी काम चलेगा.
एंड इफ़ यू पीपल हैव रेड इट, अगर बहुत एडवांस्ड बच्चा कोई है जो जिसने चीज़ें पढ़ी हैं, देन आई कैन गिव हिम सम फ्यू स्टैंडर्ड बुक्स फॉरेन ऑथर्स की, बट राइट नाउ दैट्स नॉट द रिक्वायरमेंट. अगर किसी को लग रहा है, इफ समबडी फील्स दैट हो गया इंटरनेशनल रिलेशंस का इग्नो मटेरियल, ठीक है, बट एट द सेम टाइम यू नीड टू अपडेट योर सेल्फ विद करंट डेवलपमेंट्स. जो इंटरनेशनल रिलेशंस है, आपको ये ऐसे पढ़ना है कि आपका एक तो प्रिलिमिनरी भी कंप्लीट होना चाहिए. इफ देयर इज एनी क्वेश्चन ऑन प्रिलिमिनरी, सॉरी, इफ देयर इज एनी क्वेश्चन इन प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन ऑन इंटरनेशनल रिलेशंस, आपको वो सवाल गलत नहीं होना चाहिए, इतनी क्लियर कट अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए. एंड देन GS3 पेपर, GS3 में इफ दे आस्क सम क्वेश्चन, सो आपको वो भी क्लियर होना चाहिए. ठीक है, नाउ ये हो गया थोड़ा सा मटेरियल के बारे में, व्हाट आई वांटेड टू टेल यू पीपल. नाउ आई वुड लाइक टू शेयर फ्यू एस्पेक्ट्स विद रिस्पेक्ट टू क्वेश्चंस. मैंने एक पेपर निकाला है, यहां पे दिखाता हूं आपको. सी, दिस इज द सेक्शन A. Comment on the following in about 150 words each. ठीक है, हाउ मेनी वर्ड्स? 150. ये आपके जहन में स्ट्राइक होना चाहिए कि मुझे भाई 150 का वर्ड्स लिखना है. आई शुड राइट इट 140 ओनली बिकॉज ऑफ paucity of time. You don't have much time. Don't be emotional with the answers. Don't keep on writing. मुझे ये भी पता है, ये भी लिखना है, ये भी लिखना है. You should be very clear cut with your answers. You should understand the question, what they are asking, what the examiner is demanding from me. Then second thing is you need to think about the model answer. 5 मिनट के लिए if I am the examiner, I am giving you a question कि भाई इसका आंसर लिख लीजिए आप. जिसने पेपर फ्रेम किया है, he will not evaluate your paper. Your paper will be evaluated by someone else. If Mr. A frames the paper, then Mr. B, C might evaluate your paper. अब मिस्टर बी सी के पास एक मॉडल आंसर दिया जाता है. 5 मिनट के लिए ये क्वेश्चन आया, पोस्ट कॉलोनियल थियरी ऑफ द स्टेट. इसमें लिखना है, इसमें आपको 10 मार्क्स मिलेंगे. इन 10 मार्क्स यू शुड नो वन थिंग, दैट मैं कितना भी लिखूंगा 12 मार्क्स नहीं देगा. कितना भी ब्रिलियंट आंसर आप लिखोगे, यू विल गेट 6 to 7 मार्क्स. बट ये आंसर लिखने के समय इस वाले क्वेश्चन पे इंपैक्ट, इसका टाइम नहीं जाना, इसके रिसोर्सेज यहां नहीं जाने चाहिए. इसको 10 मार्क्स हैं, 10 मार्क्स का ही टाइम देना है. इसमें 10 मार्क्स हैं, 10 मार्क्स का ही टाइम देना है. इसको 12 मार्क्स वाला टाइम नहीं मिलना चाहिए. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल नाउ, हाँ, विद द एग्जामिनर देयर आर सम मॉडल पेपर्स, मॉडल आंसर्स जो वो देखता है. जब वो इवैल्यूएट करता है, वो देखता है वो पॉइंट्स आए हैं कि नहीं. अगर आप ऐसे क्वेश्चंस में ज्यादा पॉइंट्स लिखेंगे, देयर इज एवरी पॉसिबिलिटी दैट अगर उनके पास 4 पॉइंट्स हैं, आपके 4 पॉइंट्स उनमें हो जाएंगे. अब अगर आप एक ही पॉइंट पे यू विल स्टार्ट बीटिंग अबाउट द बुश, बट यू आर नॉट आंसरिंग व्हाट ही इज आस्किंग, देयर आर 2 थिंग्स. द एग्जामिनर विल नॉट गिव यू गुड मार्क्स बिकॉज जो उसके पास तराजू है तोलने का, वो तो आप उसमें तो फिट नहीं हो रहे हैं. वो भी अपने सोचेगा कि दिस विल बी इनजस्ट टू अदर्स, अगर ये कुछ लिख नहीं रहा है, एंड आई शुड नॉट गिव हिम मार्क्स. देन सेकंड थिंग इज दैट ही माइट गेट इरिटेटेड दैट दिस जेंटलमैन इज ट्राइंग, दिस लेडी, दिस जेंटलमैन इज ट्राइंग टू befool me. I am the experienced, I am the examiner. So ये जो he is just beating about the bush, he is not answering, she is not answering the question, but he is trying to befool me. So और कम नंबर दे देगा. वैसे अगर 2 नंबर देता है फिर 1 ही देगा. So please keep this thing in mind. Don't try to befool the examiner. He is more experienced, he has better understanding of the subject. So in this 10 question, post-colonial theory of state. Now there are some people who will start writing every theory of the state. Liberal theory of the state, other theories of the states, जो भी है, हाँ, जब वो लिखना शुरू करेगा, पहला 5-6 लाइनें उसी में टेप देगा. He is not answering the question, he is writing something, he is writing what he knows. No, if there is post-colonial theory of the state, you can just do by post-colonial theory of the state, what it says, clear cut में what it says, ये लिख लिया. फिर it's
here it is written as comment. So you have this freedom to move here and there. इतना तो फ्रीडम है आपके पास, ठीक है. सो पोस्ट कॉलोनियल थ्योरी ऑफ द स्टेट, अगर आपने 2 लाइनें 3 लाइनें में इसका डेफिनेशन दे दिया कि दिस पोस्ट कॉलोनियल थ्योरी इज गिवन बाय दिस, इट मीन्स दिस, हो गया. देन रेलेवेंस इसका, जो पोस्ट कॉलोनियल थ्योरी उसने बोला है, क्या ये सच में है वैसा? जैसे ओवर डेवलप्ड स्टेट हम बोलते हैं, पोस्ट कॉलोनियल थ्योरी स्टेट लिंक होता है. कौन कौन से ये ऑथर्स, किस किस स्कॉलर ने काम किया है वो. देन वो लिखा पॉजिटिव नेगेटिव्स, फिर अपना कमेंट. कमेंट में डोंट क्रिटिसाइज एवरीथिंग, बी वेरी डिप्लोमेटिक इन योर आंसर, पर्टिकुलरली इन पॉलिटिकल साइंस. एक चीज पुट किया फिर बट इन स्पाइट ऑफ दैट, दिस subject is a developing subject. It keeps on evolving. So we are having more scholars who are having an understanding of the things, who are just trying to develop this thing. तो ऐसे लिखना है, ठीक है. So that अगर ये 10 मार्क्स वाला क्वेश्चन है, एट लीस्ट 5 मार्क्स आपको आने चाहिए, और इस क्वेश्चन पे भी इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा. फिर है क्वेश्चन, लेट इट बी इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी. इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी कुछ लोग उठा के सीधा लिखेंगे अपना आर्टिकल, कॉन्स्टिट्यूशन में क्या बोल रहे हैं. नहीं, इन इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन योर ऑप्शनल यू शुड हैव सम फिलोसॉफिकल अंडरस्टैंडिंग. ये क्या है ये इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, फिलोसफी इसका थोड़ा सा 1-2 लाइन्स में क्या आपने समझा है, हाँ, बाय रीडिंग इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम. देन इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी आप लिख सकते हो कि व्हाट इट वांट्स टू डू, जैसे इट वांट्स टू डू जस्टिस, ठीक है, फेयरनेस लाना चाहता है. देन यू कैन ब्रिंग इनटू कॉन्स्टिट्यूशनलिटी एज वेल, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन क्या बोल रहा है. देन यू कैन जस्ट ब्रिंग इनटू इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी एंड इक्वलिटी ऑफ आउटकम्स, हाउ इट इज, ठीक है, because it is written that comment. So equality of outcomes is very important comment on this. You can write how equality of opportunity and equality of outcomes are linked, ठीक है. फिलोसफी लिखा, कॉन्स्टिट्यूशनली क्या है, इसका मीनिंग क्या है, इक्वलिटी ऑफ आउटकम से कैसे लिखा, दैट्स इट. 4 पॉइंट्स आपको, 4 to 5 पॉइंट्स आपको पता होने चाहिए, ये दिस 5 थिंग्स. फिर एक्सप्लेन एक लाइन में करना है. सो दैट एग्जामिनर विल गिव यू नियरली 7 मार्क्स इन दिस क्वेश्चन. Okay. Then another question, for example, liberalism as a revolutionary idea. ठीक है, you should know what liberalism is. ठीक है, liberalism में individuality सेंटर में होता है, whatever. हाँ, कैपिटलिज्म है, खूब काम कर दो, ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस नहीं लगाओ, ठीक है. सोशलिज्म और लिबरलिज्म का आई थिंक वो बेसिक डिफरेंसेस आई विल नॉट एक्सप्लेन हियर, ठीक है. आई एम जस्ट ट्राइंग टू टेल यू द अप्रोच, हाउ टू अप्रोच दिस. लिबरलिज्म का लिख लिया आपने, थोड़ा सा डेफिनेशन क्या है, हाउ इट इज एन रिवोल्यूशनरी आइडिया. यू कैन से हिस्टोरिकली ऑल्सो इट वॉज रिवोल्यूशनरी एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम जब लिबरलिज्म आया. देन इसके मल्टीपल ब्रांड्स, ठीक है, जैसे फेबिनिज्म है, सिंडिकेनिज्म, ठीक है. हाँ, ये कहाँ कहाँ हुआ, पार्लियामेंट्री था कुछ, हाँ, रिवोल्यूशनरी भी था, बट देयर आर डिफरेंट ट्रेड्स ऑफ लिबरलिज्म. सो वो अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए. फिर वेदर इट इज रिवोल्यूशनरी और नॉट, फिर आप करंट अफेयर्स का भी लिख सकते हो, करंट डेवलपमेंट्स. Now liberalism is not that revolutionary. There are some other trends as well. जैसे राइटिस्ट ट्रेंड वर्ल्ड में डेवलप हुआ है. So वो एग्जाम्पल देने के बाद the examiner feels that this gentleman, this lady has better understanding of the things. She is able to apply what she has studied. ठीक है. Then oh my God. हाँ, जैसे एम्बेडकर्स आइडियाज ऑन कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म है ना. यू शुड नो व्हाट कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म इज.
इसका यहां पे इसका डेफिनेशन देना है, व्हाट कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म इज। देन व्हाट अम्बेडकर वांटेड, व्हाट वाज हिज व्यू, हिज ओपिनियन। जैसे अम्बेडकर का फोकस था सोशल जस्टिस पे, so he wanted that if we are able to bring this social revolution through constitution, that was also linked to his ideas of constitutionalism. So ये आपको लिखना है, see it has 10 marks, constitutionalism what was his idea, then criticism whether it is practical or not, then present what is your view। ठीक है, हो गए 4 points, 4 to 5 points, your answer is it is enough। देन माइकेवेली सेक्युलरिज्म 5 मिनट के लिए क्या था। माइकेवेलिज्म सेक्युलरिज्म जैसे यूरोपियन सेक्युलरिज्म है, ये फ्रेंच मॉडल पर्टिकुलरली है, लिख लिया ये, उसको वो लेसिट बोलते हैं। ठीक है, इनका सेक्युलरिज्म क्या था, माइकेवेली का सेक्युलरिज्म, कंप्लीट सेपरेशन ऑफ स्टेट एंड रिलीजन। ठीक है, लिख लिया सेक्युलरिज्म का मीनिंग, इसका आइडिया क्या था। फिर आप लिख सकते हो, जैसे 2-3 पॉइंट लिखा, अब आप याद नहीं आ रहा, अब क्या लिखें, देन यू कैन राइट हमारा सेक्युलरिज्म, इंडियन वर्जन ऑफ सेक्युलरिज्म क्या है, यूएस वर्जन ऑफ सेक्युलरिज्म क्या है। वी डोंट बिलीव इन कंप्लीट सेपरेशन, वी बिलीव इन प्रिंसिपल रेजिस्टेंस। कुछ चीज़ों में वी कैन यूज रिलीजन पॉजिटिवली, जैसे गांधी बिलीफ सिस्टम था वैसा। सो हमारा डाइवर्स कंट्री है, वी कांट रिजेक्ट रिलीजन इन टोटो। ठीक है, वो चीजें लिखनी है। यही 4 पॉइंट्स, 4 to 5 पॉइंट्स हो गया। देन हाँ, नाउ देयर इज अ क्वेश्चन ऑफ 20 मार्क्स। 20 मार्क्स वाला क्वेश्चन, सी मेक ए कंपैरेटिव असेसमेंट ऑफ ग्रीक पर्सपेक्टिव ऑफ जस्टिस। जब ये क्वेश्चन आया ना, यू पीपल स्टार्ट राइटिंग ऑफ ग्रीक का आइडिया क्या था जस्टिस का। देन विद द रॉल्सन, जो रॉल्स ने बोला है, जो ग्रीक्स ने बोला है। अब देखो ग्रीक का कहां से शुरू होगा, प्लेटो से। ठीक है, इसका जस्ट था वो स्पेशलाइजेशन। यहां हियर यू हैव अ चांस, अगर आपको क्लियर कट में पड़ा है ग्रीक पर्सपेक्टिव, सीधा लिखोगे। अगर नहीं याद आ रहा है देन प्लेटो थोड़ा सा लिख सकते हो, उसके बाद बाकी उनका क्या आइडिया था और रॉल्स का क्या था। हाँ, बट रॉल्स जस्ट आपको बहुत ज़्यादा अच्छी तरह होना चाहिए, क्योंकि रॉल्स का जो आइडिया ऑफ जस्टिस था वो एक मेजरिंग स्टिक है अभी। ठीक है, सो रॉल्स जस्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आई एम नॉट टेलिंग दैट ग्रीक पर्सपेक्टिव इज नॉट इंपॉर्टेंट, but this is more important. Then there should be some comparison. See, if comparative assessment is there, you should straight away compare the things. Then you can give your own opinion. Both are good. ये long back था, ahead of their times, these philosophers. Rawls का फिर इसी का reformed version आ गया। फिर Rawls का क्या impact था, influences क्या थे, Greek influence भी था Rawls पे। Then you can compare. But give due credit to both, Greek को भी, Rawls को भी। Okay, I think this is 20 marks questions. This 20 marks question में आपको ये देखना है कि मुझे at least 15 to 16 कोशिश करना है, and 15-16 लाना 20 में से, it is a brilliant answer. And that is possible. There is every possibility to get that. ठीक है, I think this is my first interaction with you people. I don't know how you people feel, and I don't know what are the questions that are arising there. So it will be great if people can ask me some questions with respect to political science and international relations, and GS as well. In GS particularly, how to approach essay, how to approach general studies 3, and how to be, how to perform better in interview as well. I got good marks in my interview also because of my optional subject. So political science is very much relevant to the current developments, very much relevant to the civil services. ठीक है, so political science as an optional ऐसे ही पढ़ना है हमें, its relevance देखना है हमें। अगर ये चीज़ इसमें लगा रहे हैं 2 महीना 3 महीना, so what is the outcome, productivity? All right guys,
Okay, hope I'm looking forward to see you people soon. Take care and prepare well. Thank you.